Students, these are the steps that we have studied in our previous lecture, or rather we say in our previous video lecture, and these steps are used to design the sliding contact bearing. Now with the help of these steps we will solve a design problem and design a bearing for a centrifugal pump. Now I am going to read a problem in which we are going to design a journal bearing for centrifugal pump. It's an example. Design a journal bearing for a centrifugal pump for the following data. Load on the journal is 20,000 Newton. Speed of the journal 900 rpm. Type of oil is SAE10, for which the absolute viscosity at 55 degree centigrade is equal to 0.017 kg per meter second. Ambient temperature of oil is equal to 15.5 degree centigrade. Maximum bearing pressure for the pump is 1.5 Newton per mm square. You have to calculate mass of the lubricating oil required for artificial cooling. तो मास अगर हमें तभी जरूरत पड़ेगी आर्टिफिशियल कूलिंग की इफ हीट जनरेटेड इज हाई इन कंपैरिजन टू heat dissipated. Given rise of temperature of oil is limited to 10 degree centigrade. Heat dissipation coefficient is 1232 watt per meter square per degree centigrade. First we will write down the parameters that are given to you. W is the load on the journal, which is 20,000 Newton. N is RPM, 900 RPM. T naught is 55 degree centigrade, which is ambient. It is the type of oil is SAE, for which the absolute viscosity at 55 degree centigrade is 0.017. So 55 degree centigrade is the operating temperature T naught. Z is equal to, which is the viscosity, is equal to 0.017 kg per meter second. TA is the ambient temperature. It is given as 15.5 degree centigrade. P is the maximum bearing pressure, which is 1.5 Newton per mm square. T is 10 degree centigrade and C equal to 1232 watt per meter square per degree centigrade, means heat dissipation coefficient. These parameters are given to us. So first of all, let us find the length of the journal. Assuming diameter of the journal as 100 mm, because diameter is not given, so we are assuming it as 100 mm. And after that we will find L by D ratio. आप प्रॉब्लम में देख रहे हैं, here we have to design the bearing for centrifugal pump. तो हम L by D रेशो निकालेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए. ये हम डिज़ाइन डाटा बुक से देखेंगे. डिज़ाइन डाटा बुक में आपको ये टेबल दे रखी होगी. यहाँ आप देख रहे हैं कि जनरेटर, मोटर और सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए L by D रेशो है 1:2, यानी 1 से 2 के बीच है. तो इसलिए हमने अज्यूम कर लिया L by D रेशो इक्वल टू 1.6. So length of the journal is 1.6 times the diameter and length comes out to be 160 mm. तो डायमीटर हमने 100 mm अज्यूम करी और लेंथ हमारी निकल के आई 160 mm. Now in the second step
we will find the bearing pressure. Bearing pressure is given by P equal to W upon LD. W is the load which is 20,000, length of the bearing is 160 and diameter we have taken 100 mm. So bearing pressure comes out to be 1.25 and the maximum bearing pressure is 1.5 Newton per mm square. So we can say that the bearing pressure of that we have determined 1.25, it is less than the maximum value of 1.5 Newton per mm square. Therefore the dimensions that we have assumed for L and D आर सेफ, यानी जो D को हमने 100 माना और जो हमारा L कैलकुलेट होके आया 160 mm वो सेफ है. अगर P की वैल्यू 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा आती यहाँ कैलकुलेट होके तो हमें इसे फिर रीडिज़ाइन करना पड़ता. उस केस में हमें डायमीटर फिर चेंज करना पड़ता जिससे कि P रिड्यूस हो जाता और रेंज के अंदर आ जाता. फिर डायमीटर चेंज करते तो लेंथ भी चेंज करते. तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, पर फॉर्चुनेटली जब हमने D100 लिया तो हमारा डिजाइन सेफ निकला. इन द थर्ड स्टेप वी विल कैलकुलेट Zn अपॉन P विच इज द बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर. विस्कोसिटी पता है, आरपीएम पता है, प्रेशर 1.25 ऊपर निकल के आया है. तो Zn अपॉन P comes out to be 12.24. तो हम अगर टेबल को दोबारा से देखें, उसी टेबल को जो हम पिछली स्लाइड में दिखाई थी, आप दोबारा जाना उस टेबल पे, तो आप देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए Zn अपॉन P है 28, मतलब ऑपरेटिंग वैल्यू Zn अपॉन P की 28 है और हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू निकल के आई है वो 12.24 आई है. अच्छा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है Zn अपॉन P की, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3K. तो हम Zn अपॉन P 3K के बराबर रखेंगे. आपको याद होगा मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था कि अगर ये इस वैल्यू पे Zn अपॉन P की इस वैल्यू पे म्यू मिनिमम होता है, ठीक है, और ये मिनिमम वैल्यू Zn अपॉन P की कहलाती है बियरिंग मॉड्यूलस, राइट. तो ये स्टेप आप ध्यान रखें. पहले आप ये देखेंगे कि Zn अपॉन P सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए कितना है 28. फिर आपने Zn अपॉन P रखा 3K के बराबर, राइट. 3 ये बियरिंग मॉड्यूलस वाला जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग. अगर आप ये कंसेप्ट भूल गए हैं तो दोबारा वीडियो पे जाएं, ठीक है. आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट K इक्वल टू 1/3 Zn अपॉन P और Zn अपॉन P को 28 रखेंगे, वो वैल्यू जो कि ऑपरेटिंग वैल्यू है और हमने टेबल से निकाली है, राइट. तो K निकल के आया 9.33. तो K निकल के आया 9.33, लेकिन हमने जो Zn अपॉन P की कैलकुलेट की है वो 12.24 करी है. ये 9.33 से ज्यादा है. इसका क्या अर्थ है कि हमारा बियरिंग हाइड्रोडायनामिक कंडीशन में वर्क करेगा. इसका ये भी अर्थ हुआ कि हमारा जो डिजाइन बियरिंग है इसमें ऑयल फिल्म ब्रेक नहीं होगी फॉर द गिवन लोड ऑफ 20,000 न्यूटन. तो मेरे ख्याल से ये थर्ड स्टेप आपको समझ में आ गया होगा. दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा वीडियो को बैक करें और फिर से सुनें. फोर्थ स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे क्लियरेंस रेशियो फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप, मींस C/D रेशियो. तो हम फिर उस टेबल पे जाएंगे और आप ये देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए C/D रेशियो है 0.0013. Now in fifth step we will calculate
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, म्यू इक्वल टू 33/10⁸ मल्टीप्लाइड बाय Zn/P मल्टीप्लाइड बाय D/C प्लस K। Zn/P हम कैलकुलेट कर चुके हैं 12.24। D/C भी हमें पता है, क्योंकि C/D है 0.0013, तो D/C क्या होगा 1/0.0013 प्लस K वी ऑलरेडी नो इट इज 0.002। ये फॉर्मूला अगर आप भूल रहे हैं तो वापस मेरे पुराने वीडियो में जाएं और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला ध्यान से देखें। दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो गिवन इन डिजाइन डाटा बुक, और हाथों हाथ आप डिजाइन डाटा बुक भी कंसल्ट करते रहें और देखते रहें कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, क्या स्टेप है, राइट। नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट द हीट जनरेटेड। हीट जनरेटेड इज गिवन बाय Qg इक्वल टू म्यू डब्ल्यू वी। V इज गिवन बाय पाई dn/60। D यहाँ मीटर्स में रखते हैं, म्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है 0.0051, W हमें पता है द लोड एक्टिंग इज 20,000 न्यूटन, V इज पाई dn/60, D हमने 0.1 मीटर लिया है, RPM इज गिवन 900 N, and so we'll get heat generated equal to 480.7 watt. Now we will calculate heat dissipated. It is given by QD equal to CA TB minus TA, which is equal to C multiplied by L into D, because area is equal to length into diameter. We take the projected area, right, and we know that TB minus TA equal to half of TO minus TA. ये प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये पढ़ा चुका हूँ, डिटेल में आपको समझाया था, ठीक है। तो ये एडवाइस करूँगा कि न्यूमेरिकल को करने से पहले वो प्रीवियस वीडियो एक बार और देख लें, अगर समझ में ना आया हो। समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, डिज़ाइन डाटा बुक सामने रखेंगे और बेहतर समझ में आएगा। तो ये यहाँ हमने सॉल्व किया, TB माइनस टी इज इक्वल टू हाफ 55 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वैल्यू हमें पता है। देयरफॉर TB माइनस टी ए कम्स आउट टू बी 19.75 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम हीट डिसिपेट निकाल सकते हैं, QD इक्वल टू C इज 1232, राइट, इन मल्टीप्लाइड बाय 0.16 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, L और L इंटू डी, मतलब एरिया हमने निकाला यहाँ। दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 19.75, वी गेट QD इक्वल टू 389.3 वॉट। अब यहाँ आप गौर से देखें कि हीट जनरेटेड इज ग्रेटर देन हीट डिसिपेटेड, तो ऐसे केसेस में हमें अब ध्यान देना होगा, बिकॉज इफ हीट जनरेटेड इज मोर देन डिसिपेटेड देन there are chances that thermal deformation will take place and it will ultimately result in failure of the bearing. अब ऐसे में या तो फिर हम रीडिज़ाइन करें बियरिंग को, जिससे कि हीट जनरेटेड थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, या दूसरा ऑप्शन है ये है कि डेट वी शुड गो फॉर आर्टिफिशियल कूलिंग। अभी हम सेकेंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम में भी हमसे आर्टिफिशियल कूलिंग का ऑप्शन दे रखा है। So when we subtract heat generated minus heat dissipated, we get the value 91.4 watt, यानी कि इतनी हीट एक्स्ट्रा है जो डिसिपेट नहीं हो पा रही है, इतनी हीट हमें डिसिपेट करनी है आर्टिफिशियल कूलिंग के माध्यम से। So let's find out the mass of lubricating oil required for artificial cooling. Let it M is the mass of lubricating oil in kg per second, and heat that is to be taken away by the oil is given by QT equal to MST. M multiplied by S, specific heat of the oil,
इसकी वैल्यू 18402 टू 2100 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है, तो ये हमने मानी है 1900 मल्टीप्लाइड बाय 10, so we get Qt equal to 1900 m. So this value is taken equal to 91.4 because it is the amount of heat to be dissipated. So we get m equal to 0.0048 kg per second, which is equal to 0.288 kg per minute. This is the mass flow rate of the oil, and specific heat of the oil should be 1900 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हमारा पूरा बियरिंग डिज़ाइन हो गया है, आर्टिफिशियल कूलिंग भी डिसाइड हो गई है। सो दिस प्रॉब्लम इज ओवर, डन।